Hello, I am a C final student and we are today going to learn illustration number sets of from our study material. So let us proceed with our discussion. So Hindustan Industries Mumbai has a branch in Cochin to which goods are invoiced at cost plus 25%. This means let's suppose be the cost be the 100, then the markup would be the 25%. So it would bring the cost to 125%. So मतलब जो ये जो price हो रही मतलब the price at which the head office sells to branch is equivalent to 125% of cost है ना. The branch sells both for cash and credit है ना. तो branch दोनों cash और credit पे भी बेचती है. The branch expenses are paid directly from the head office and the branch has to remit all the cash received into the head office bank account. From the following details related to calendar year this, prepare the accounts in the head office ledger. मतलब कहाँ पे accounts बनाने हैं? We have to make the accounts in the head office ledger and ascertain the branch profit. Branch does not maintain any books of account but sends weekly return to the head office. So what we have to prepare the branch accounts in the books of the head office by stock and debtors method. We have to prepare it using the stock and the debtors method. So what is the first entry? Goods received from head office at invoice price. मतलब the branch has received the goods from the head office at invoice price. This means this price is equivalent to 125. This price is equivalent to 125 है ना. तो अब अपन हमारी एंट्री क्या होगी? Branch stock would go up. तो because we have received the branch stock, we would pass the entry branch stock account debit with an amount of rupees 6 lakh है ना. तो branch stock account debit, तो entry would be 1 minute, wait a minute. Branch stock account debit है ना. Branch stock account debit to GSTB, to goods sent to branch account, do goods sent to branch account. So this is equivalent to 6 lakh. But we know, as we know that GSTB needs to be knocked off with the purchases है ना, to the extent of the cross price. मतलब आप ये समझो 6 लाख रुपए के अंदर कितना प्रॉफिट है. 6 लाख के अंदर अगर आप देखो 6 लाख 125 के बराबर है तो 100 कितने 100 के बराबर क्या होगा? तो इट्स कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू 4,80,000. सो GSTB account will be knocked off. ठीक है, GSTB account will be knocked off from the purchases to purchase account to the extent of 4,80,000. ठीक है, and the rest will be transferred to मतलब 4,80,000 रुपए यहाँ से आ गए. तो 4,80,000 रुपए कहाँ से है? ये परचेज प्राइस है. तो GSTB में 6 लाख रुपए का बैलेंस था. 4,80,000 has already been knocked off from the GSTB account and the rest will be transferred to the branch adjustment account. This will be transferred to branch adjustment account है ना. तो ये आपका क्या हुआ? 6 लाख माइनस 4,80,000 रुपए. तो 1,20,000 has been transferred to the branch adjustment account. So we have successfully passed our first entry. तो ये देखो बहुत ही सिंपल एंट्री थी है ना. तो सबसे पहले क्या हुआ? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, रिटर्न्स टू द हेड ऑफिस at invoice price. So what the branch has done is they have returned the goods. So what will be the entry? Our stock would have reduced. So we have to credit the branch stock account and correspondingly debit the GSTB account. The goods sent to branch account has been reduced because goods has been returned by the branch. So GSTB account debit by debit of rupee 12,000. We have to debit it by 12,000 and to branch stock. तो branch stock account है ना, branch stock account has been reduced by 12,000. So this is our journal entry. अब now as we know that the GSTB account needs to be knocked off with the purchases. So what we need to pass the entry is we need to credit the GSTB account so that this account gets eliminated and we need to record a purchase account debit है ना. We need to record purchase account debit. This should be at the cost price. So 12,000 is equivalent to 125. So the value of 100 will be the 9,600. तो purchase account debit, branch adjustment account debit है ना, branch adjustment account debit, branch adjustment account debit है ना, account debit कितने रुपए से? 12,000 minus 9,600. So this comes out to 24,000 and to branch stock account है ना, to GSTB account, sorry, to GSTB account. मतलब हमारा अब जो GSTB account है this turns out to 0. क्योंकि देखो पहले 12,000 रुपए डेबिट हुआ, now it has been credited and the correspondingly debit has been made into purchase account
up to the extent of the cost price, and the balance has been debited to the branch adjustment account, which comprises of the profit element of the head office when the goods are shipped to branch, that is equivalent to 25% of cost. तो मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को अब हमने कम कर दिया है, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को अब हमने कम कर दिया, तो एंट्री रही परचेज अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट। तो अब हमने ये वाली दोनों एंट्रीज पोस्ट कर दी है। रिटर्न्स टू हेड ऑफिस ये भी अब हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अब देखो स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 60,000 रुपए। तो दिस मींस ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कितने रुपए होगा, वो 60,000 रुपए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कितना होगा, ये जो 60,000 है दिस इज इक्विवेलेंट टू 125। सो द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी इक्विवेलेंट टू 25। सो ओपनिंग बैलेंस जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का होगा वो 12,000 रुपीज होगा। तो ये भी हमने पोस्ट कर दिया है। तो ये वाला बैलेंस भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, मतलब 60,000 रुपए स्टॉक में होगा और 12,000 रुपए कहां पे होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में होगा, ठीक है। अब आप देखो सेल्स हमने जो करी है वो क्या करी है, कैश और क्रेडिट सेल्स करी है। तो आपको पता होगा कि जो कैश होगा वो सीधा हेड ऑफिस में चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, सीधा जो कैश होगा ना वो कहां पे आएगा, हैज टू डेबिट ऑल द कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। और जो क्रेडिट सेल्स है वो तो क्या हो जाएंगे, ब्रांच के डेटर्स हो जाएंगे। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, जो कैश सेल्स हुई है ना उसका जो बैलेंस है ना वो सीधा कहां आ जाएगा, हेड ऑफिस कैश में आ जाएगा। तो हेड ऑफिस के कैश में कितना बैलेंस आ गया, 2 लाख रुपए। और हमारा जो ब्रांच स्टॉक है ना वो कम हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक जो है वो डिड्यूस हो जाएगा बाई 2 लाख रुपीज, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो तो एक एंट्री डलेगी, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारी एंट्री डलेगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3,20,000 रुपए से, 3,60,000 रुपए से, सॉरी है ना। तो 3,60,000 रुपए से ये एंट्री डलेगी आपकी। तो 3,60,000 रुपए से आपकी ये एंट्री डली और स्टॉक आपका कम हो जाएगा। तो ये दोनों एंट्रीज भी आपकी ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आओ, ओपनिंग बैलेंस जो आपको दे रखा है ना सन्ट्री डेटर्स का, वो दे रखा है 72,000। तो जो ये सन्ट्री डेटर्स अकाउंट है ना आपका, देखो इसे ब्रांच P&L की जगह हम क्या बना देते हैं, ब्रांच सन्ट्री डेटर्स, है ना, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, है ना, ब्रांच का डेटर। तो ये ब्रांच का डेटर अकाउंट जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, तो ब्रांच का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 72,000, है ना। तो 72,000 हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो ये वाला आइटम भी अब हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आप समझो कि ब्रांच डेटर्स में हमें जो अभी सेल करी है, तो जो हमने सेल करी है उसके एंट्री बीट चढ़ा देते हैं। तो ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक जो हमने अभी क्रेडिट सेल करी है, तो ये 3,60,000 रुपए की ये एंट्री भी हमने चढ़ा दी, ठीक है। अब आप समझो कि अब हमें क्या हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पैसा है हमें डेटर्स से मिल गया, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है सीधा हेड ऑफिस के कैश अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में कितने रुपए मिले आपको, 3,20,000 रुपए मिल गए। किससे मिले, तो ब्रांच के जो डेटर्स है वो खत्म हो गए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड आउट। तो ब्रांच के डेटर्स जो लेजर है वो आपका क्लोज आउट हो गया। तो ब्रांच के डेटर्स को मतलब आपको क्या मिला, ये सीधा आपने कहां पे जमा करा दिया पैसा, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में, है ना। तो ये आपकी जर्नल एंट्री आ गई 3,20,000 रुपए से, है ना, ये वाली एंट्री, ये वाली 3,20,000 रुपए से। तो ये भी आपकी एंट्री पोस्ट हो जाती है। तो ब्रांच डेटर अकाउंट भी, ये वाला भी आपकी एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी पोस्ट हो जाता है। अब आप देखो अब क्या लिखा है, डिस्काउंट बेड डेट्स, है ना। अब इन दोनों की एंट्री क्या होगी, अब आप बहुत सिंपल है, इन दोनों की एंट्री ये होगी डिस्काउंट बेड डेट्स और सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न है, इन तीनों की एंट्री एक ही एंट्री डाल दो, मैं आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इसकी एंट्री क्या क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, देखो जो बेड डेट्स है तो वो क्या हो गया, ब्रांच का एक्सपेंस हो गया। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस, है ना। ब्रांच एक्सपेंस क्या क्या हो गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो डिस्काउंट भी ब्रांच एक्सपेंस हो गया, है ना, और बेड डेट्स भी। तो ये दोनों मैंने क्या किया, ब्रांच एक्सपेंस कर दिए। अब जो सेल रिटर्न है उससे क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो मैं लिखता हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है, तो 8,000 रुपए, है ना, और 2 ब्रांच डेटर्स, है ना, 2 ब्रांच डेटर्स। तो ये जो टोटल आ जाएगा 10,000 प्लस 8,000 रुपए, तो 18,000 रुपए। तो ब्रांच डेटर्स में क्या हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में बहुत सिंपल है। तो ब्रांच बाई सबसे पहले तो क्या हुआ, बेड डेट्स, ठीक है। बेड डेट्स कितने हुए आपके, बेड डेट्स प्लस डिस्काउंट दोनों का टोटल ले लेते हैं अपन 10,000 रुपए, है ना। और बाई स्टॉक ये कितने रुपए हुआ आपका, ये स्टॉक आपका कितने से अप हुआ, ये आपका स्टॉक अप हुआ है 8,000 से। तो स्टॉक के लेजर में आप आइए और आप यहाँ पे आप लिख दिए 2 ब्रांच डेटर्स। तो कितने रुपए से आपका स्टॉक अप हो चुका है, 8,000 रुपए से। तो ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो ब्रांच एक्सपेंस ब्रांच स्टॉक ये हमारी जर्नल एंट्री पोस्ट हो जाती है। बस इसमें आप ब्रांच एक्सपेंस लेजर जो है ना, ब्रांच एक्सपेंस लेजर, वहां पे भी आप ये एंट्री डाल दीजिए। तो ये जो ब्रांच, लेट सपोज ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में आप क्या किए, 2 ब्रांच डेटर अकाउंट, है ना। तो ये जो बेड डेट्स का जो खर्चा है, बेड डेट्स एंड डिस्काउंट का, ये टोटल 10,000 रुपए यहाँ पोस्ट हो जाता है ना। अब अपन क्या करते हैं,
तो अब हमारी कौन कौन सी एंट्रीज पोस्ट होगी, सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, ये तीनों एंट्रीज हमारी पोस्ट हो जाती है, ठीक है। अब आप सोचो जब सेल रिटर्न ब्रांच ने हेड ऑफिस को करी थी तो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भी हुई थी। देखो जब ब्रांच ने, देखो हुआ क्या था, जीएसटीबी टू ब्रांच स्टॉक, ये जब सेल रिटर्न ब्रांच ने करा था तो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट में भी हुआ था। लेकिन जब डेटर ने मुझे स्टॉक रिटर्न किया टू द ब्रांच, देयर विल बी नो एडजस्टमेंट इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ठीक, बस सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बस आपको याद रखना है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में तभी एडजस्टमेंट होती है जब हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजेक्शन हो, मतलब ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है। अब आप समझो रेंट, रेट, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये किसने पे किए होंगे, हेड ऑफिस ने। तो एंट्री क्या होगी, है ना, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, है ना, टू हेड ऑफिस कैश, टू हेड ऑफिस, है ना, हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दी, टू हेड ऑफिस बैंक, ठीक है, बैंक से लेट सपोज ये पेमेंट हो जाती है। तो इन सबका टोटल कितना हुआ, इन सबका टोटल हुआ इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस, तो ये टोटल हो जाता है आपका 8,40,000 रुपये, नहीं 84,000 रुपये, सॉरी। तो इट कम्स आउट टू 84,000। तो ये भी अब हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना स्टॉक अकाउंट का, वो दे रखा है 1,20,000। तो अब हम क्या करते हैं, अब बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है अब अपन को, ठीक है। अब आप करो, सबसे पहले ना ब्रांच स्टॉक अकाउंट का लेजर बनाओ, पूरा पेपर करो, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आप लेजर पूरा पेपर करो। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू जीएसटीबी, सबसे पहले एंट्री इस साल में ये होती है, तो आपने ये पोस्ट कर दिया, है ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी, ठीक है। अब आप समझो जीएसटीबी टू परचेजेस टू ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट में कितने रुपए आने, 8,20,000 रुपए। तो आप यहाँ पे क्या करो, है ना, तो बाई जीएसटीबी, ठीक है, जीएसटीबी अकाउंट से यहाँ पे पैसा आएगा कितने रुपए, 8,20,000 रुपए, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो सेल्स रिटर्न होती है, तो बाई जीएसटीबी, है ना, तो मतलब परचेज रिटर्न होती है, सॉरी, परचेज रिटर्न हो रही है यहाँ पे, तो 12,000 रुपए से हमारा स्टॉक कम हो गया, ठीक है। तो सिमिलर बेसिस पे ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या होगा, टू जीएसटीबी कितने रुपए, ये जो एंट्री हुई हमारी, ये जो 2,400 रुपए, ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट में ये जो 2,400 रुपए है, ये हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ तक की हमारी जितनी भी एंट्रीज है ब्रांच एडजस्टमेंट तक की होगी। फिर आप देखो हेड एक कैश में बेचा, एक ब्रांच डेटर के रूप में बेचा मैंने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपने सेल कर दी, तो बाई कैश, है ना, कितने रुपए कैश में कितना बेचा आपने, 2 लाख रुपया बेचा, और बाई बीडी, ठीक है, बीडी में कितना, मतलब कितना क्रेडिट सेल बेचा आपने बेचा 3,60,000 रुपये आपने क्रेडिट सेल बेचा, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। तो बाई बीडी अकाउंट कितना हो गया आपका, 3,20,000 रुपये। ब्रांच एक्सपेंसेस, अब देखो एक तो ब्रांच एक्सपेंसेस की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं, और एक 84,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है, तो टू हेड ऑफिस बैंक, ठीक है, 84,000 रुपये, ये वाली एंट्री भी हमारी रिकॉर्ड हो जाती है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो अब देखो अब हमारा जो लेजर है ना वो प्रिपेयर्ड है। बस आप देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है एट इनवॉइस प्राइस 8,20,000 रुपए। दिस मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू 125। अब हमें इसे 100 पे लाना है, तो 100 पे कैसे लाएंगे, मतलब 96,000, मतलब जो प्रॉफिट है इसके अंदर वो कितना है 24,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, 24,000 रुपए होना चाहिए। दिस शुड बी, है ना, दिस शुड बी 24,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप अगर देखो, है ना, अब आप देखो क्या ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपका टैली हो रहा है, अगर नहीं टैली हो रहा तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले इलस्ट्रेशंस में समझा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो साइड है ना, इस मतलब आपने जो रिसीव हुआ उससे भी ज्यादा पे माल बेचा, मतलब मान लो अगर 125 पे माल रिसीव हुआ तो आपने यहाँ पे 130 में बेचा हुआ, तभी तो ये साइड ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब अब ये जो बैलेंस है ना ये भी कहाँ पे जाएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट में, टू ब्रांच, मतलब ये क्या है, ब्रांच ने अपना प्रॉफिट कमाया है। मतलब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या बैलेंस होता है, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को बेचने के लिए पैसा कमाया, मतलब हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को माल बेचा तो जितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन अब ये वाला जो बैलेंस है ना, ये जो आ रहा है, अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, बेसिकली 6,68,000 ना, ये क्या आपका, ये वो डिफरेंस है जो कि मतलब आप समझो, मतलब ब्रांच ने अपने आप कमाया, मतलब मान लो ब्रांच ने 120 का माल लिया और 130 में आगे बेच दिया, तो ये जो 24,000 रुपए है ना ये वो वाली चीज है। तो ये अब ये जो 24,000 है ये ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया, तो बाई ब्रांच है ना, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये आपका बैलेंस यहाँ पे आया। तो ये 24,000 रुपए की एंट्री यहाँ पे आई, 24,000 रुपए की एंट्री यहाँ पे आई। अब आप देखो आपको क्लोजिंग बैलेंस 24,000 रखना है, तो इसका मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो जीपी हुआ वो क्या हुआ, अगर मैं देखूँ सिंपल, तो दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस माइनस
दिस माइनस दिस, तो ये आता 1,29,600, ठीक है। अब आप क्या करो, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट तो है ही आपका, तो इसे भी आप क्या करो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप करते हो इसे सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस, तो ये आता 94,000, है ना। अब अपन क्या करते हैं, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सिंपल है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या होगा, बाई ब्रांच बाई जीपी, ठीक है। सबसे पहले तो जीपी आया हमारा, जीपी कितना आया हमारा, जीपी आया 8,29,600 रुपए, है ना। नाउ वी शुड डिडक्ट आवर ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, कितने रुपए ये हमारा 94,000 है ना। एंड द बैलेंस इज आर नेट प्रॉफिट, दिस इज आर नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हुआ 8,29,600 माइनस 94,000, सो दिस कम्स आउट टू 35,600। तो अब अगर अपन वो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, तो दिस कम्स आउट टू 35,600, तो मतलब हमने एकदम सही कैलकुलेशन करी है। तो दिस इज अ क्वाइट सिंपल इलस्ट्रेशन। बस आपको इसमें क्या समझना था, बस आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद आपको बस स्टॉक अकाउंट के सारे लेजर्स बनाने थे, और इट वुड हैव बीन अ वेरी इजी क्वेश्चन। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस illustration?